As we have like 94 people on the call. So if you guys can just put in your comments in the chat, whether if you can hear me clearly and look at me and Dr. Aftab. All right. Oh yes, so it's all clear for them as well. Great, great, great. So guys, we'll just wait for another 2 minutes and we'll start. Let's give other people join. There's still people joining in. We have 103 participants right now. All right. So thank you everyone for joining in the session. If you have seen the topic, I think this is something which is very close to my heart. I really get excited about anything related to cybersecurity because that's the way to go. You guys as accountants, I'm sure you must have come across a lot of literature, a lot of conversations with your colleagues in your office, even with your friends on how technology is going to change the future. I mean, there's so many benefits coming in. We have seen certain shifts because of the COVID-19 situation as well, with adoption of technology a lot by all of the organizations, even individuals. अगर आप बच्चों की बात करें घर से लेके, your parents, even your grandparents are sort of using technology more because of the current situation. Do keep in mind that because we have all of these benefits, there are certain risks associated as well because of technology. And वो risks क्या होते हैं? How to even identify if we are in a risky situation? I think that's something which we would be covering today in our session. For our session today, we have Dr. Aftab Rizvi here with us. He is internationally renowned information security consultant and an entrepreneur, and he has more than 25 years of experience. He has been working for the compliance of the e-commerce industry since e-commerce started. And he has also been considered as one of the world's leading information security auditor and compliance services provider. He was also involved in introducing the ISC2, ISACA academic programs internationally for CISSP. I think these are some of the things which you will get to learn more what these are, what these qualifications are, because this is an entire area where you can specialize and where you can sort of build a career as well. He has won a lot of awards, a lot of achievements for the magnificent work that he has done. And I would like to hand it over to Dr. Aftab to shed some light on some of his accomplishments, some of the accomplishments that the Risk Associates has accomplished over the years, who he is currently the CEO of. So over to you, Aftab sir. Thank you. Thanks a lot for inviting me for this session. It's a real pleasure to work with you and your team and provide some information and guidance to the ACCA community, who are really a backbone of the financial sector in this industry. So I'm really happy that I'm coming here and contributing in some way.
First question, can you see my slide? Okay. Can you hear me well? Yes. And the slides are okay as well? You can see my slides? Yes. 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 That's good. People are commenting that yes, they can see and look at the slides as well. Okay, good. I can't see your comments, so I have to rely on Ali for this. First thing is that, like Ali had done the introduction, it's very important now to understand what are we dealing with. When we talk about the information and we talk about the data, and especially financial data is part of it, we need to understand what is the risk around it. So pehle jo hota tha, that was a very good time. Okay, there was everything was on a paper, and there were ledgers and there were books. So you were able to keep them secure by making sure that it is with the right people, they are under lock and key and everything. But now the situation is very different. Situation is that there is data, and then we got some machines where there were computers, and then we had got floppy disks. Few of you who were using this information systems for a long time, they know that there was time when there was a floppy disk and then there was a hard disk and so on and so forth. And now the challenge is that we honestly don't know where my data is, because all of us are using some sort of techniques, some sort of ways or mechanisms, including cloud. Whether we know it is cloud or not, we don't know where data is. If we're using Hotmail, we are using Yahoo, that means you are exchanging the information on a communication channel which is out of your control, and you don't know where data is stored. When we progress further, then we also see that now we are using Office 365, like for example, we are using Microsoft. That means also that we are storing the information somewhere which is not in our control, and that is called cloud. And ironically, now we even don't know where it is really stored, which part of the world it is stored. So that means जब भी कोई चीज change करते हैं उसके साथ challenge आता है. So what I'll do, that I'll give you an idea and I'll tell you my story first, that what we do and how we do, so that you can just understand that what is involved, and at a global picture, at a bigger picture, you understand that what we do and why we do these things. So I started a company in 2006, but I am in information security business since 1999. At that time, it was not information security, it was not cyber security, it was called IT security, because the only thing which we knew was the computer systems. Then after that we progressed और हमने इसको information technology कहना शुरू कर दिया. When we started to that level where the computers get connected to each other, so that means उन्होंने एक cyber domain बना दिया. This cyber is basically connection of different computers, different network components, networks, and series of computers. So हमने internet बनाया. Then internet की वजह से जो space बनी, we started calling that cyberspace. जिस तरह physical security में हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे पास एक physical space थी, वो बेशक हमारा घर था और country और our country, हमें उसको secure करना था. So वो हमारे पास mechanisms थे कि हम उसे कैसे secure करेंगे. हमें गार्ड की जरूरत होगी, तो हम डॉग गार्ड्स भी यूज कर सकते हैं, हम लोगों को यूज कर सकते हैं, देन हम आर्म गार्ड यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्री लेवल, हम डिफरेंट तरीकों की चीजें यूज करते हैं. सो बेसिकली हमें सिक्योरिटी चाहिए. अब हमारा चैलेंज ये हो गया कि हमने जैसे जैसे अपना मीडियम चेंज किया, वैसे वैसे हमारे पास रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गई, थ्रेट वेक्टर्स चेंज हो गए, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने आप का ऐसे कंट्रोल्स अप्लाई करें जो उनको रिस्क मिटिगेट कर सकते हो. So since 2006, it was always a learning curve.
So things were changing, technology was changing, and then we come to the stage जहां पे स्टैंडर्ड्स बनना शुरू हो गए। पहले अपनी मेरा रिस्क इतना है, मैं इतने कंट्रोल्स अप्लाई कर देता हूं इसके ऊपर। फिर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री आई, उसने कहा कि जी पेमेंट का रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हुई, वीजा एंड मास्टर कार्ड आए, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर ओन स्टैंडर्ड्स, उनका कम से कम इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। सो वी स्टार्टेड वर्किंग विद दोज स्टैंडर्ड्स, और फिर देन वी रियलाइज कि बेसिकली अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता, इट हैज टू बी समथिंग विच इज जॉइंटली, किसी हर इंडस्ट्री को अपने लिहाज से कंट्रोल्स डिफाइन करने, और वो जो कंट्रोल्स डिफाइन किए जाएंगे वो हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक होंगे। सो पेमेंट का इंडस्ट्री केम अप विद देयर ओन स्टैंडर्ड्स, उसको हम कहते हैं पीसीआई डीएसएस के स्टैंडर्ड्स हैं, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। उनकी एप्लीकेशंस के लिए अलग स्टैंडर्ड हैं, वो कहलाते हैं पेमेंट एप्लीकेशन डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह ओवरऑल जिस तरह आपने प्रोग्रेस देखी है कि आईएसओ स्टैंडर्ड्स बने, आईएसओ स्टैंडर्ड्स बेसिकली दे आर मैनेजमेंट सिस्टम्स। 9001, most of you would have heard about it, ISO 9001, that is a quality system. तो आप क्या करते हैं कि मेंटेन करना चाहते हैं कि आप अश्योरेंस कैसे करते हैं कि क्वालिटी मेंटेन होगी, कंसिस्टेंटली आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे, वो 9001 किया। जब हमने रियलाइज किया कि सिक्योरिटी भी इसी तरह का एक चैलेंज बनता जा रहा है, एंड देयर शुड बी अ मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच डील्स विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो एक और स्टैंडर्ड आ गया ISO 27001। तो ISO 27001 की भी एक हिस्ट्री है, उससे पहले डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे एंड सो ऑन, सो आई वोंट बोर यू विद दैट इंफॉर्मेशन, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच वी डू हैव अ रीजन, एंड द रीजन इज, ultimate goal is how to secure your data, how to secure the organization, how to secure the cyberspace, how to secure the country, and so on. So this is few examples what we offer. ये फिर उसके बाद आपको मालूम है जिस तरह सिक्योरिटी में आपको टेस्टिंग करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता तो चले कि वाकई व्हाट स्टेज यू आर इन। सो दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स, एंड सो ऑन। देन अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद हम फोरेंसिक्स कैसे करते हैं। जिस तरह पुलिस है, पुलिस का जॉब है कि इंसिडेंट के बाद उसको फोरेंसिक्स करे, एनालाइज करे कि क्या था रीजन, वो जो प्रिंसिपल्स वहां जो अप्लाई होते हैं मॉम कि कोई मोटिव होगा, कोई अपॉर्चुनिटी होगी, व्हाट आर द मींस। इसी तरह ये डिजिटल इंसिडेंट जब हो जाते हैं या हैकिंग हो जाती है तो उसके भी फोरेंसिक्स होता है, सो वी डू दैट एज वेल। और ये सारी चीजें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ की जा सकती हैं, क्योंकि आपको कोई नया काम खुद से करने की जरूरत इसलिए नहीं होती कि इट टेक्स टू लॉन्ग। सो वी वर्क विद ओवरऑल ग्लोबली विद द इंडस्ट्री, लाइक ACCA जिस तरह अकाउंटिंग में है, ऑब्वियसली you got CAs, you work with them, you work with ICMAs and so on. There are different organizations जो अपने गोल अचीव करने के लिए कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होना चाहिए वो काम कर रहे हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेक्टर में भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें सीसा है, उसमें आईसाका है, इज लाइक अ बॉडी जो ऑफर करती है सर्टिफिकेशंस, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कंट्रोल एसोसिएशन है। इस तरह ISC स्क्वेयर्ड है जो सर्टिफिकेशन ऑफर करती है, ट्रेनिंग ऑफर करती है मैनेजर्स के लिए, ऑडिटर्स के लिए, एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट वी आर, वी वर्क विद दोज ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ काम करके हम वो अचीव करते हैं स्किल सेट या सर्टिफिकेशन। जैसे आपको मालूम है ACCA आप इसलिए करते हैं कि थर्ड पार्टी से आप एक वेटिंग ले लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, किसी ने आपको बताया है। इसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बताती हैं कि थर्ड पार्टी असेसर्स हैं कि ये अब जो कंसल्टेंट है, ये जो काम कर रहा है वो इस काबिल हो गया है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। सो दीज आर फ्यू नेम्स हियर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। And then what we really do, we offer cybersecurity consulting, testing, solution designing, and also work exclusively for payment card industry. We offer managed solutions and ISO certifications. So basically ये overall एक system है जिसमें आप शुरू से आखिर तक आपको सिक्योरिटी मैच्योरिटी की तरफ हम बात कर सकते हैं और लेके चल सकते हैं। आई थिंक मुझे जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की, अली ने बहुत ऑलरेडी बता दिया है कि who am I. So what I'm trying to do here, that I would like to cover what cyber risks are,
what is the scale, ताकि हम comprehend कर सकें। अभी तक हम जो बात करते हैं सिक्योरिटी की, मुझे इस पे एक बात याद आ गई कि 2005 में या 4 में, आई डोंट रिमेंबर नाउ, डॉक्टर अताउर रहमान वाज द मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड मैंने पहली बार पाकिस्तान में आके एक सेमिनार किया या एक लेक्चर दिया जिसको मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक्सप्लेन किया। उस वक्त जब मैं हुआ, उस वक्त जो बात हुई, इट वाज सो न्यू फॉर एवरीवन कि उसके बाद जो पहला सवाल आया था वो ये आया था, अच्छा तो इसका मतलब ये कि हमें नॉर्टन एंटीवायरस लगा लेना चाहिए। सो बेसिकली दैट वाज द लेवल कि जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वायरस आ जाता है इसलिए आपको सिक्योर करना चाहिए। लेकिन अब जो चीजें हैं वो बहुत वास्ट स्केल पर है, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू सी, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब हम ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ, आई विल कवर वन बाय वन एंड आई विल ट्राई टू बी brief as well, but we have plenty of time for questions. So अगर जिसका इंटरेस्ट होगा वो सवाल पूछ सकता है ज्यादा। So one thing is very clear, नाम सुना है आपने रॉबर्ट मिलर का, FBI के डायरेक्टर थे, और वो ये सम अप कर दिया मैंने, इसलिए ये कोट यहाँ लिखा है। There are only two type of companies, those that have been hacked and those that will be. So ये एक बड़ी अजीब सी चीज बनती जा रही है, ये अजीब सी एक सर्टिटी बनती जा रही है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंज रहेगा। इसको दूसरी तरह समझने का तरीका ये है, आपको इट विल कीप यू ऑन टोज ऑल द टाइम, दैट यू नीड टू बी श्योर कि यू आर ऑन योर टोज एंड यू आर मेकिंग श्योर दैट योर कंट्रोल्स आर इन प्लेस एंड यू आर आपके साथ जो है अपने आप को इतना मुश्किल बना लें हैक कराना कि कोई ना जाए। एक और इसकी एग्जांपल ये दी जाती है कि इफ देयर आर 3 कार्स इन द स्ट्रीट और वो 3 कार्स जो हैं, एक लेट्स से BMW है, एक सुजुकी है और एक आई डोंट नो कोई भी है, अल्फा है, कल ही आई है तो मैं उसके बारे में कोई बुराई तो कर नहीं सकता। सो अगर कोई डिसाइड करता है, किसी को जरूरत है ज्यादा और वो कहता है कि मैं गाड़ी चोरी करना चाहता हूं, तो मुझे लगता ये है कि वो BMW की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए कि उसे ये पता है, हालांकि वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए उसको, लेकिन उसको ये मालूम है कि इसके अंदर अलार्म भी होगा, इसमें ट्रैकर भी होगा, इसमें इंजन मोबिलाइजर भी होगा और इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होंगे इसको ब्रेक इन करने के। तो आसान काम क्या होगा कि मैं सुजुकी को देखूं और मैं वो देख लूं कि अगर उसके अंदर लॉक लगा हुआ नहीं है तो और आसान है जिंदगी। So I'm just trying to make it very simple and explain the situation. So what does this mean? कि अगर बहुत सारी जो हैकिंग होती है वो सिर्फ इसलिए हो रही होती है कि कोई शौकिया बैठा होता है और वो देख रहा होता है कि कौन सा सबसे आसानी से हैक हो जाएगा। अगर वो थोड़ा सा मुश्किल है तो उसे छोड़ देगा, इसलिए पता है कि यहाँ पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर। अगर मुझे शौकिया हैक इन करना है, कोई मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो मैं किसी को भी कर लूंगा। मुझे जरूरी थोड़े कि आप ही का लैपटॉप या आप ही की मशीन या आप ही की कंपनी में मैंने घुसना है। लेकिन दूसरी बात ये तो, एक तो ये बात है, तो इसलिए आप अपना मुश्किल बना देते हैं थोड़ा सा कि इतना आसान ना हो हैकिंग करना। अगर बट दूसरी बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल जो आप खबरें सुनते रहते हैं और आप स्टेट एक्टर्स की बात भी सुनते हैं एंड सो ऑन, कि अगर कोई डिटरमिन कर ले कि आपको हैक करना है तो वो कर लेगा, then nobody can stop it. I don't want to name the country, लेकिन अगर कोई कंट्री चाहे कि आपकी जो मशीन है उसको हैक करना है तो हो जाएगी, वो कोई मसला नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लीजिए फिर आप। लेकिन what my point is, you just don't give up. You need to make sure that adequate level of security is there, ताकि कोई जो लोग शौकिया हैं वो ना कर सकें, कम से कम जो वाकई में आपको चैलेंज दें आप लोगों को, इतना आराम से कोई हैक ना कर सके। तो इसकी एग्जांपल, इसके सपोर्ट में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी, पिछले कितने दिन 24 दिसंबर से आज तक के कुछ इंसिडेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। और ये जो इंसिडेंट्स है ये छोटी वाली बातें नहीं हो रही है यहाँ पे, कि दिसंबर 24 को एक खबर आ रही कि सीसा वॉर्न्स SolarWinds इंसिडेंट रिस्पॉन्स में भी सब्सटेंशियल। SolarWinds क्या है? एक कंपनी है जो इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के टूल्स प्रोवाइड करती है। किसको करती है? गवर्नमेंट्स को करती है। एक गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट्स को, इंक्लूडिंग यूएस। और ये बताया जा रहा है, अब तक ये पता चला है कि शायद 18,000 कंप्यूटर्स हैक हुए होंगे क्योंकि उनके टूल्स में वल्नरेबिलिटी आ गई थी या उस टूल को हैक कर लिया गया था। Citrix warns its ADC products are being used in DDoS attack. I'll talk about these things. ये जो है, ये उन कंपनीज के नाम ले रहा हूँ कि जो कि यूज Citrix का क्या नाम है। Citrix जब कहा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि रिमोट वर्किंग के लिए आप Citrix यूज करते हैं एज अ टूल। अगर उसके अंदर इतनी वल्नरेबिलिटी है कि वो अगर वो किसी सिस्टम पे डिप्लॉयड है और वो DDoS के लिए यूज हो रहा है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, तो आप ये सोचिए कि आप जो भी यूज कर रहे हैं अगर वही खुद कंप्रोमाइज हो जाता है तो क्या होगा। Kawasaki cyber incident may have resulted in data loss. ये कब की बात हो रही है? और अब मोस्ट रीसेंट 5 जनवरी की बात हो रही है। रिसर्च डिस्क्लोजर डिटेल्स ऑफ Fin7 हैकिंग ग्रुप malware। रोजाना, मतलब बिला मुबालगा, देयर आर साइट्स, अगर आप वहां जाइए आपको डजन्स नहीं हंड्रेड्स ऑफ साइट्स मिलेंगी जिनके और लिखा होगा कि वो फलानी साइट हो गई, फलाना कंप्यूटर हैक हो गया, फलानी कंपनी हो गई, फलानी गवर्नमेंट के साथ ये हो गया, एंड सो ऑन। इंडिया पाकिस्तान के इंसिडेंट्स आप सुन चुके हैं बेतहाशा, थाउजेंड्स में होते हैं ये इंसिडेंट्स जो कि क्लेम किए जाते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिया, पाकिस्तान ने इंडिया के लिए कुछ कर दिया, डिफरेंट कंट्री ने डिफरेंट कंट्री के लिए कुछ कर दिया। इसकी स्टैट्स अवेलेबल है। इट्स नॉट दैट कि ये पब्लिक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ये स्टैट्स अवेलेबल है कि किस मुल्क ने किसको हैक किया। और ये सोलर विंड्स में ये रशिया का नाम आ रहा है कि जो अमेरिका के 18,000 कंप्यूटर हैक हुए। ट्रंप के इलेक्शन में फेसबुक के साथ जो था कि फेसबुक ने मैनिपुलेट किया, वो अलग कहानी है बिल्कुल। दैट इज नॉट कॉल्ड हैकिंग, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बट आई जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि क्या लेवल है रिस्क का। सो फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिस्क, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट करें तो क्या करें फिर? आप ये सोचें कि साइबर क्राइम जो है उसकी ग्लोबल इकोनॉमी में जो कॉस्ट बताई जा रही है बाय 2021 वो 6 ट्रिलियन होगी, $6 ट्रिलियन। वो साइबर क्राइम की वजह से ये जो लॉस होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, या जो साइबर क्राइम में पैसे जाया होते हैं या पैसे दिए जाते हैं अगर कोई रैंसमवेयर आ जाता है, उसका एस्टिमेटेड 2021 में ये $6 ट्रिलियन होगा और 3 साल पहले इट वाज $3 ट्रिलियन। During the analysis of 52,000 security data and data incidents, 76% of the breaches were financially motivated. ये planned हैं, ये सोचें आप, ये planned हैं, की जाती हैं कि इससे फाइनेंशियल गेन कैसे ली जाए। ये जो है ना, पहले ये था कि भाई किसी ने हैक कर लिया, वो वहां बैठे हुए हैं कुछ लड़के और वो शॉप में, क्योंकि टूल्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, तो दे जस्ट ट्राइड समथिंग और कोई कंप्यूटर हैक हो गया, साइट को डीफेस कर दिया, वेबसाइट को डाउन कर दिया। दैट वाज फॉर फन, दैट वाज द ईगो थिंग, आई कैन डू इट सो आई हैव डन इट। लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया है, इट्स ऑल फाइनेंशियली ड्रिवन। ग्लोबल स्पेंडिंग इज प्रेडिक्टेड टू बी $1 ट्रिलियन ओवर 5 years। ये सारे रेफरेंसेस के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। malware की बात हो रही है, 812 million malware infections have been recorded in 2018 alone। so ये जो इतनी पिक्चर है, इतनी रोजी मैं अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाऊंगा। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड वी हैव टू थिंक अबाउट इट प्रॉपरली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होता है कि जब भी कोई साइट हैक होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स कंप्रोमाइज होते हैं, हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल? बक स्टॉप्स एट हु? द चीफ एग्जीक्यूटिव। सो सीईओ जो है उसका चैलेंज है कि भाई क्या हुआ, आपके अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाई इट हैपेंड। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो उसके बाद किसकी बारी आती है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो अब हमें देखना पड़ता है क्या फाइनेंशियल लॉस है, क्या कुछ है, then it comes to CFO। So
ये जो सीईओ और सीएफओ का रोल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए लोगों के लिए, कि भाई उनको जब तक रिस्क का ही नहीं पता होगा कि क्या हो चुका है, क्या हो सकता है, वो कैसे बता सकते हैं कि भाई ये इसका इम्पैक्ट ये है। और कोई इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी है या बड़ी है। जो पहली डेफिनेशन थी, पहली जो हमने बता दी थी, उसके मुताबिक कोई भी साइट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर हैकिंग हो सकती है या इंसिडेंट हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। उसका इम्पैक्ट किसने बताना है? इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स अकाउंटिंग प्रॉब्लम। बिकॉज बॉटम लाइन क्या है अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है? लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड लॉस ऑफ रेवेन्यू, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे करें। सो व्हाट आर द टाइप्स एंड स्केल्स ऑफ लॉसेस? ये देखिए आप, कुछ इंसिडेंट्स, अक्टूबर 2020 का इंसिडेंट है अभी। This organization, AG, Software AG, was asked to pay $20 million for ransom money, as a ransom money. उन्होंने आज तक दिए नहीं पैसे अभी तक, लेकिन they are in trouble. They are still restoring the data since October 2020. कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम होता है कि they are hacked, ransomware आता है, उनके सारा डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है, फिर उनको एक नोट आता है कि इतने पैसे दे दीजिए आप एंड बिटकॉइन की फॉर्म में, और फलानी जगह पहुंच जाएं, और अगर ये हो जाता है, अगर आप नहीं देंगे तो आप डेटा नहीं रिकवर कर सकते, और वो नहीं रिकवर कर पाते तो फिर जाते हैं अपनी बैकअप्स पे और मुख्तलिफ तरीकों से ट्राई टू रिस्टोर द डेटा फ्रॉम पास्ट। और बड़ा इंसिडेंट 2019 में कैपिटल वन की हैकिंग। तो हैकिंग का एक और जो चैलेंज है वो ये है कि अब इतने लॉज बन चुके हैं, और पाकिस्तान में बनने वाला प्राइवेसी का लॉ या पास हो गया या हो जाएगा, कि अगर डाटा ब्रीच होती है तो वो जो आपको रेपुटेशनल लॉस है या फाइनेंशियल लॉस है वो अपनी जगह, रेगुलेटर भी आके आपको फाइन करता है। सो कैपिटल वन को जो हैकिंग हुई है उसके बाद रेगुलेटर ने भी उसे $80 मिलियन का डेटा ब्रीच का फाइन किया है। और आपको ये मालूम है कि जीडीपीआर जो एक यूरोपियन लेजिस्लेशन है कि यूरोपियन सिटीजन का डेटा अगर कंप्रोमाइज हो जाता है, ब्रीच हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनका, और उन्होंने इनफ अपने पास कंट्रोल्स नहीं लगाए हुए थे, दे कैन बी फाइंड अ मिनिमम ऑफ 20 मिलियन यूरो और 3% ऑफ देयर टर्नओवर, व्हाटएवर इज मैक्सिमम। तो 20 मिलियन यूरो के बाद बहुत सारी कंपनीज दोबारा खड़ी भी नहीं हो सकती। सो वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि डेटा ब्रीच जो है कितना बड़ा इशू है इंटरनेशनली, और वो पूरा एक तरह से चेन का इशू है कि अगर आपके पास किसी को सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज, और अगर उनका डेटा ब्रीच आपकी वजह से होता है, देन दे कैन सू यू। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि क्या इश्यूज हैं। So I hope I'm not only trying to scare you guys, but I'm trying to give you information that what are the reasons. क्योंकि एक और सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है, और वो भी मैनेजमेंट का ही चैलेंज है, कि जब आईटी वाले या कोई और जाके बताता है कि हमें इतने पैसे चाहिए डेटा सिक्योरिटी के लिए या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, then management comes back and their response is, no, it's too expensive, we can't do it. इसलिए कि they can't see the ROI straight away. There is no ROI which is visible to implementing a security control. उसी वक्त ये नजर आती है जब कोई इंसिडेंट होता है. So the challenge is that के वो जितनी ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो उतना पोटेंशियल रिस्क समझ के उतना ज्यादा उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आएगी कि हमें क्या कंट्रोल्स अप्लाई करने चाहिए. एक और केस स्टडी है यहाँ पे इक्विफैक्स की, एंड दैट वाज इन 2017. सो 153 मिलियन अमेरिकन्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ से जो है वो स्टील हुई थी. सो व्हाट डज दिस मीन? क्या आप ये सोचें कितना बड़ा डाटा ब्रीच है, और उसके बाद उसका stock का क्या हुआ, and so on so forth. So basically these are the challenges which we need to understand very well.
Okay, so I think you'll get a copy of the presentation anyway, so you can see that as a result, CEO had to resign, and they took about more than 4 years to recover from the whole situation. और उसके बाद जो उनका अपना forensics हुआ या जो different agencies ने जो आके उनका हाल किया वो एक अलग बात है. So what is a cyber threat basically? What are we talking about here? Threat, you know, you work in financial industry, तो आप risk को तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं. So basically उसी को हम यहाँ translate कर रहे हैं. So what is it? That is a risk to exposure, alter, disable, destroy, steal or gain unauthorized access. क्या 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 हो सकता है? Threats क्या क्या हैं? Destruction of data, monetary loss, loss production, theft of personal information, cost of recovery, and reputational damage. These are some of the threats, some of the risks. अगर हम security की बात कर रहे हैं, तो basically by definition, information security is confidentiality, integrity, and availability. You see that अगर आपकी कोई भी information है, अगर वो कहीं से चोरी हो जाती है, तो वो उसका क्या मसला है? वो misuse भी हो सकती है. इसका मतलब अगर वो confidential information थी, that became a challenge. UK की एक एग्जांपल है कि UK में टैक्सी में एक किसी काउंसिल के ऑफिसर ने एक सीडी छोड़ दी which was not encrypted और उसके ऊपर वहां के रेजिडेंट्स का डेटा था. तो चैलेंज जो उनको आ रहा है, उनको सू किया गया इस बात पे कि वो डेटा लीक हुआ और वो इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया गया. और जो चैलेंजेस आए वो आप मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट लेवल है. बाज लोग जो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करते, वो कहाँ रहना चाहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी पब्लिश हो गई और उसकी वजह से उनको जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, a broken family for example, and so on so forth. So those were all secondary issues. उसके बेसिस पे काउंसिल को सू किया गया कि आपने हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिश करवा दी, लीक करवा दी और उसकी वजह से क्या-क्या नुकसान हुआ. So confidentiality is a serious matter. And then obviously integrity is the second one. कि अगर कोई कंप्यूटर में आके आपने फाइनेंशियल बनाए हैं पिछले साल के किसी कंपनी के और उसको ऑल्टर कर देता है, या अभी रिलीज नहीं किया आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल की, आपने बताया नहीं है कि डिविडेंड क्या होगा, अगर वो पहले मार्केट में चली जाती है, स्टील कर लेता है कोई, देन व्हाट हैपेंस टू दैट? सो इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हमें समझ में आ जाती है बड़े आराम से कि अगर आपने $10,000 का चेक दिया है लेकिन किसी ने एक और जीरो ऐड करके 100,000 कर दिया उसको रास्ते में, देन व्हाट हैपेंस एंड सो ऑन. तो these type of things are very easy to understand. The third thing is availability. Availability उन लोगों को बड़े आराम से समझ आ जाएगी जो कि e-commerce sites हैं. For example, I'm a bank and most of my customers are doing internet banking. Yeah, I'm selling, let's say, some sports goods on my website. And मुझे मालूम है कि क्रिसमस से 4 दिन पहले वीक तक, that is the maximum time, that's the maximum orders I can get because these are time for the buying the gifts. और उन 4 दिनों में मेरी साइट डाउन हो जाती है, तो what type of losses I'm talking about? ऐसा कैन यू इमेजिन? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक होता है हॉर्स रेसिंग होती है, मेलबर्न कप. मेलबर्न कप की एक रेस जो है इतनी बड़ी है कि अगर उसके ऊपर जो बेट्स होती हैं, दोज आर बिलियंस ऑफ डॉलर्स. अगर किसी स्पोर्ट्स बैटिंग ऑपरेटर का सिस्टम उससे 2 घंटे पहले डाउन हो जाता है, उसका लॉस इतना है कि जो उसने 2 साल में भी रिकवर नहीं कर सकता. So availability of these sites, availability of systems is a challenge. So we are talking of कि सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं, थ्रेट्स की बात कर रहे होते हैं, तो थ्रेट हमें 3 लेवल पर है. कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए भी है, इंटेग्रिटी के लिए भी है और अवेलेबिलिटी के लिए भी है. रैनसमवेयर एक और एग्जांपल है. अब ये रैनसमवेयर की अगर हम बात देखें और अगर हमें पता चले, इतना बाज़-औक़ात अफसोसनाक सिचुएशन होती है कि यूरोप में एक हॉस्पिटल पे रैनसमवेयर का अटैक हुआ और पेशेंट्स का सारा रिकॉर्ड जो है उसको एनक्रिप्ट कर दिया गया.
Can you imagine? Because all the files are kept online, सिर्फ कंप्यूटर्स पे इतना रिलायंस है कि so many patients died कि आपको पता ही नहीं था इसको अगली मेडिसिन क्या देनी है। जब तक आप दोबारा से डॉक्टर को ढूंढें जो उसको दोबारा हिस्ट्री कलेक्ट करें और सब कुछ करें, इट वाज अ डिजास्टर। सो रैंसमवेयर जो ऑफर कर रहा है वो आपको अवेलेबिलिटी की थ्रेट ऑफर कर रहा है कि ये आपका जो सारी चीजें इंफॉर्मेशन है वो चली जाएगी। उसके साथ साथ एक और काम कर रहा है, I'm purposely using these terminologies ताकि आप फेमिलियर हो। इसके साथ दूसरी चीज जो ये कर रहा है वो आपको डिनायल ऑफ सर्विस भी कर रहा है। डिनायल ऑफ सर्विस का क्या मतलब होता है? डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि आप जो काम करना चाहें वो आप नहीं कर सकें, सर्विस अवेलेबल नहीं है। और आप किस तरह ये सारे होते हैं, ये आपका मेलवेयर भी यही करता है कि मेलवेयर जो है, मेलवेयर कहते हैं उसको है कि आप कोई, आपके पास लेट से अनएक्सपेक्टेड पॉपअप्स आ गए, कोई स्ट्रेंज ईमेल आ गई और आपने उसको क्लिक किया, जो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसके बाद उसके ऐड आना शुरू हो जाते हैं। ये तो बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म है, बड़ी हार्मलेस फॉर्म है, लेकिन उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो कंप्यूटर में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे जो कि हार्मफुल हो, जो आपके कंप्यूटर का कंट्रोल ले ले, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो these are the types of attacks। ये सारे नाम आपको सुने हुए होने चाहिए या कम से कम आइडिया होना चाहिए कि ये मैलवेयर का क्या मतलब है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे किसी तरीके से इंस्टॉल हो जाए। वो बेशक कोई लिंक भेजे, और अब ये काम सिर्फ कंप्यूटर्स पे नहीं रह गया है, ये मोबाइल फोन्स पे भी हो गया है, लैपटॉप्स पे भी हो गया है, क्योंकि अब वो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स के लिए भी है, एंड सो ऑन। दिस टाइप ऑफ थिंग, इसमें यही होता है कि मैलवेयर, ये क्रिप्टो जैकिंग, ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, ये क्या कर रहा है कि आपके पास ये ऐसा मैलवेयर आया जो कि आपने कोई चीज अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर ली और वो अब किसी और के लिए काम कर रहा है। एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। आजकल क्रिप्टो करेंसी का आप बहुत जिक्र सुनते हैं। इसको माइनिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं और बड़े हाई परफॉर्मेंस चाहिए कंप्यूटर्स की। सो व्हाट इज हैपनिंग दैट देयर आर लार्ज हैकर्स और ग्रुप्स जो कि दूसरों के कंप्यूटर यूज करते हैं अनऑथराइज एक्सेस करके, और वो अनऑथराइज एक्सेस करने का तरीका ये कि कोई ऐसी चीज मैलवेयर भेजा जाता है जो कि इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद उस कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेते हैं। तो आपको तो हो सकता है पता भी नहीं चले हफ्तों महीनों, जब तक वो लगेगा सिर्फ ये स्लो हो गया है। स्लो इसलिए हो गया कि वो तो कुछ और कर रहा है बैकग्राउंड में जो आपको नजर भी नहीं आ रहा है, एंड सो ऑन। और साइबर थ्रेट जो है, अभी मैंने डिनायल ऑफ सर्विस का नाम लिया। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि आपकी एक वेबसाइट है जहां मैं जाकर देख सकता हूं कि आप क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, या अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, ई कॉमर्स साइट है तो मैं जाके खरीद सकता हूं। मैं PIA की साइट पे जाके टिकट खरीद सकता हूं, एयर ब्लू की साइट पे जाके टिकट खरीद सकता हूं। अगर 10 लोग टिकट खरीद रहे होंगे एयर ब्लू की साइट पे, वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर वो इस तरह डिजाइन हुआ है सिस्टम कि उसके अंदर 1000 लोग एट ए टाइम जाके अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, वो भी दैट इज फाइन। लेकिन अगर वो सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ जाता है, जो कि आपने हमेशा सुना है कि लोड बढ़ने की वजह से साइट क्रैश हो गई, तो अगर कोई ऐसा करे बैठ के कि इलेजिटिमेट रिक्वेस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट डालता रहे और यहां तक कि इतना ज्यादा लोड हो जाए साइट पे कि वो क्रैश कर जाए, तो जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं वो भी एक्सेस ना कर सकें, तो उसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। तो अगर मैं ये काम कर रहा हूं और मेरे पास, बेसिकली मैं ये आसान अल्फाज में ही समझ लीजिए कि अगर मैं एक यूनिवर्सिटी हूं और मेरे पास उस यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 कंप्यूटर हैं, मैं उन 1000 कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेज देता हूं PIA की साइट पे, तो जाहिर है वो चोक हो जाएगी बैंडविड्थ, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाएगा। अब ये होने लग गया है कि मैलवेयर के थ्रू जब आपका कंप्यूटर कंट्रोल कर लिया, तो जिस तरह वो क्रिप्टो जैकिंग कर रहा था, जिस तरह वो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर रहा था, इसी तरह उसी से डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी करा देगा। अब क्या हुआ इसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर कुछ मुल्कों में जहां कानून बने हुए हैं कि आप किसी को अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकते किसी मशीन की,
तो वो अनऑथराइज एक्सेस आपकी मशीन से हो गई है वहां पर। सो दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अटैक। आपने अटैक कर दिया उसको विदाउट नोइंग, लेकिन जब कोई इन्वेस्टिगेट करेगा तो आपके आईपी एड्रेस पे आ जाएगा कि जी आपने भेजा था ये रिक्वेस्ट, एंड नाउ द सिचुएशन इज दैट नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने एनफ कंट्रोल्स क्यों नहीं अपने कंप्यूटर पे लगाए हुए थे कि कोई उसको एक्सेस करके वहां से इललेजिटिमेट और इलीगल रिक्वेस्ट भेज सके। तो जब ये काम बहुत सारे कंप्यूटर से कराया जाता है तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो दिस कैन हैपन टू यू और यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। तो जब हम कंप्यूटर क्राइम की बात कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर क्राइम दो तरह का है। एक क्राइम तो ये होता है कि आपके कंप्यूटर पे कोई क्राइम हो जाए, आपका डेटा उठा लिया किसी ने एंड सो ऑन, और दूसरा ये कि आपके कंप्यूटर को यूज करते हुए कोई क्राइम कर ले, दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम। तो वी नीड टू बी विजिलेंट अबाउट बोथ। ये सारी चीजें जो हैं ये आई होप कि इतनी मुश्किल नहीं हो रही हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि बहुत सिंपल अल्फाज में बताने की कोशिश करूं। तो कोई कमेंट है किसी का? अली आप? जी आफ्ताब साहब, आई थिंक एक दो क्वेश्चंस आए हैं जिसमें एक क्वेश्चन है कि व्हाट डिवाइसेस आर मोर वल्नरेबल टू मैलवेयर्स, लैपटॉप्स या सेल फोन्स। एक क्वेश्चन है कि एक हमारे मेंबर हैं, उनके फ्रेंड का व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया था थ्रू अ कोड। ये दो हैं। एक क्वेश्चन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम ज्यादा डिटेल में एंड पे देख लेंगे कि ACCA मेंबर्स जो हैं उनके लिए साइबर सिक्योरिटी कितना रेलेवेंट है, और अगर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में किसी ने अपने स्किल्स डेवलप करने हैं तो वो कैसे किए जा सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चंस बाद में लेता हूं ताकि हो सकता है कुछ जवाब ऑलरेडी आ जाएं। इस वक्त सिर्फ मैं कमेंट, जी सर। मेरा मकसद ये था पूछने का कि द वे आई एम डिलीवरिंग इट इज मेकिंग सेंस, लोगों को समझ आ रहा है, नंबर वन। नंबर दो, कोई जो ब्रॉड, इट इज सो ब्रॉड that we have to cover so many things in short amount of time. So am I too fast? That's all I'm asking. Ji guys, if you think we need to slow down a bit, do comment. And if you think it's too broad and we need to narrow it down to accountants and specific what's relevant to them. But I think if we go with the same flow, it will not only cover the business aspect but the individual aspect as well, based on some of the examples that you've just heard from Dr. Aftab. All right, so they're commenting, it's not too fast, it's the perfect pace. Good. Basically Good to go, मकसद sir. जो है ये है कि कुछ चीज डिलीवर हो यहाँ पर, ये वक्त गुजर के ये ना हो कि वो चला जाए और फिर किसी को कोई फायदा ना हो। बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, और मेरा भी है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये चाहूंगा कि जब भी सही, इट शुड बी वेल स्पेंट हर एक के लिए। So that was the only thing. That's why I'm asking. Right. So these are the type of threats. Similarly, एक और चीज जो है यही है कि आपको अपना कंप्यूटर को हैक, मतलब बॉटनेट्स इज वन अदर साइबर थ्रेट, के बॉटनेट्स यूज होते हैं एंड दे आर अगेन they are helpful for the hackers to provide a distributed denial of service attack. Right. एक बात आप सुन रहे होंगे, ये बहुत ज्यादा आप सुन रहे हैं, एक फिशिंग, स्मार्ट फिशिंग, स्पीयर फिशिंग एंड वेलिंग। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग का मतलब बिल्कुल वही है जो आप समझ रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं और आपने देखा कि कोई फंसेगा इसके अंदर। कैसे फंसेगा? कि आपने एक ऐसा इंटरेस्टिंग मैसेज, ये जो व्हाट्सएप का मैसेज जो आया है इसके बारे में भी इसी तरह की बातें होती हैं कि एक कोई मैसेज आता है आपके पास, वो मैसेज कहता है आप ये काम कीजिए, और वो जो काम करवा रहा होता है उसके अंदर कोई रीजन होती है। एक तो पहली चीज आप ये याद रखिए कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। ये आप बिल्कुल याद रखिए कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई आके आपसे कहेगा कि ये चीजें हम बांट रहे हैं, ये फ्री में है, ये आप ले लीजिए। ये अगर आपको कोई मैसेज आता है जिसमें आपको कोई चीज ऑफर की जाती है, पहला तरीका यही समझने का, इट इज अ स्कैम।
और दूसरी बात जो है, अगर कोई legitimately something you are getting for free, that means you are the commodity. क्यों व्हाट्सएप आपको फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्यों आपको मैसेज रखने की जगह दे रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं आप, क्यों ये फैसिलिटी मिल रही है? कोई तो इंटरेस्ट होगा व्हाट्सएप का। फेसबुक का क्या मसला है? फेसबुक इतनी स्पेस दिए चला जा रहा है, आपकी तस्वीरें स्टोर करके ये भी बताता है कि 10 साल पहले आपकी ये तस्वीर थी। कोई तो लॉजिक है। क्यों भाई? दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर मनी एट ऑल। आई एम टॉकिंग ऑफ कॉमन यूजर। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं फेसबुक की वजह से, ई कॉमर्स में जा रहे हैं, फेसबुक के साथ बेच रहे हैं, मार्केट स्पेस में जा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई एम टॉकिंग ऑफ अ कॉमन पर्सन। क्या वो कह रहे हैं कि नहीं जी आप बताइए आपके दोस्त कौन हैं, आप ये भी बताइए कि आपको क्या पसंद है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब है कि कोई चीज है जो आपसे मिल रही है उन्हें, और वो क्या मिल रहा है? वो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो आपकी पसंद है, वो आपकी लाइकिंग है, वो आपकी प्रोफाइल है, वो आपकी हिस्ट्री है। कि बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं कि भाई आप बताइए कि 10 साल पहले आप कैसे थे और आज कैसे थे, आप आज कैसे हैं आप। तो वो आपको खुश करने के लिए कराए जा रहे हैं। एक सवाल ये है कि वाओ दैट लुक इट वाज मी 10 years ago। दीज आर द प्रोजेक्ट्स जो डिजाइन के जा रहे हैं, इसलिए कि एआई का सिस्टम जब बन रहा है तो इंसान कैसे चेंज कर रहा है अपने आप को, 10 साल में क्या फर्क पड़ा किसी के ऊपर। अगर आपके पास 5 लोगों की इंफॉर्मेशन है कि 10 साल की तस्वीर है, फिर 9 साल की है, फिर 8 साल की है, तो आप अपने सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन जब आपके 5 मिलियन लोगों की तस्वीर आ जाएगी तो आपका सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम बन जाएगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएंगे। आपको पता होगा कि ये डेटा कितना कीमती है मेरे लिए। अगर आपको हमेशा आपको किसी चीज को आप लाइक कर रहे हैं कि जी ये जो है वेट लॉस के लिए बड़ी अच्छी बात इसने कही है, पसंद कर लिया आपने, इसका मतलब है आपका कोई इंटरेस्ट है इसके ऊपर, आपके ऊपर वो वाली प्रोडक्ट्स बेची जा सकती हैं, आपको वो ऐड दिखाने चाहिए जो आपको पसंद आए, एंड सो ऑन। सो फिशिंग से बात शुरू हुई। फिशिंग इज अ मैसेज विच यू रिसीव, और जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो कोई एक्शन होता है जो आपको नहीं पता चलता, लेकिन वो या आपकी कोई इंफॉर्मेशन या आपका कोई डेटा या कोई चीज या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पर या आपके फोन के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है जिसकी वजह से डेटा लीक कर रहा है। डू यू नो कि अब अभी बहुत बड़ी खबर आई थी कि बहुत सारी इस्लामिक साइट्स बनाई गई हैं जो कि फॉर एग्जांपल किबला लोकेशन, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ साइट का, मुझे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, या अजान के टाइम या सो ऑन, वो क्या कर रही हैं, वो आपकी सिर्फ पोजीशंस ट्रैक कर रही हैं, दैट्स इट। वो पोजीशन का क्या हो रहा है, वो रिकॉर्ड बन रहा है कि अब मूवमेंट्स कैसी है, प्रोफाइल के साथ कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस वक्त कहां पर है, एंड सो ऑन। और ये डेटा है जो खरीदा जाता है, बेचा जाता है, पता चलता है कि किसकी मूवमेंट क्या है। अब आप देखें आजकल अगर आपके पास आईफोन है या इवन एंड्रॉयड फोन है तो कितनी सारी चीजें फोन आपको खुद बता रहा होता है आपसे पूछे बगैर। तो क्या मतलब है, इट इज योर प्रोफाइलिंग। तो ये जो है फिशिंग, पहले ये होती थी कि आपने 1 लाख ईमेल्स भेज दी, 1 लाख एसएमएस भेज दिए और देखा कि उनमें से कितनों ने उसको क्लिक किया। कोई क्लिक किया, 1% तो होगा ना, लेट्स से, दैट्स मोर देन इनफ। मैंने 1% का डेटा आ गया मेरे पास। नाइजीरियन स्कैम के बारे में सुना है आपने? आज का नहीं, 25 साल पुराना है, फोन पे भी होता है, रहा है, कॉल्स भी आती रही हैं, खत भी आते रहे हैं कि भाई आपके पास ये हो गया है, इतना कि आपको इनाम निकल आया है। मुझे याद है 80s में पाकिस्तान में आता था कि जनाब आपका व्हाट वाज दैट मैगजीन विच वाज वेरी पॉपुलर, वो आपका जो उसमें आपने एंट्री डाली थी इसलिए आपका वो इनाम निकल आया है, तो आपका 2.5 मिलियन का या 2.5 लाख का या वट, तो आप इतने पैसे जमा कराइए तो ये होगा। तो वो वही चीजें अब बदल गई हैं। अब आप स्मार्ट फिशिंग में आ गए, फिर आप स्पीयर फिशिंग यानी टारगेट करते हैं, और फिर वेलिंग, वेलिंग में अटैकर को क्रेडेंशियल भी पता होते हैं कि किसको क्या करना है, एंड सो ऑन। सो यू नीड टू बी विजिलेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई चीज कहां से ऑफर हो रही है और क्यों ऑफर हो रही है।
और ये जो जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू हुई हैं और OTP जो आपके पास कोड आता है, इसकी वजह से तो बेतहाशा दफा आपके पास मॉनेटरी लॉस भी होता है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। इसी तरीके से एक अटैक कहलाता है मैन इन द मिडल। मैन इन द मिडल का मतलब ये होता है कि एक वेब एप्लीकेशन है, मैं लेट से मेरा अकाउंट है हबीब बैंक में, मैंने हबीब बैंक से अपने पैसे ट्रांसफर करने हैं किसी और ब्रांच में। मैं नहीं कह रहा कि हबीब बैंक में प्रॉब्लम है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नाम उसका नाम बदल के मैं ABC बैंक भी कह सकता हूँ। मैंने ABC बैंक की वेबसाइट पे गया, लेकिन एक्चुअली वो ABC बैंक की वेबसाइट नहीं थी, बट आई थॉट कि ये ABC बैंक की वेबसाइट है, क्योंकि मैंने जब URL टाइप किया उसके अंदर थोड़ा सा टाइपो हुआ और वो कहीं और चला गया, और उसकी शक्ल उसकी बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की वो होनी चाहिए। वहां पे अपने मैंने क्रेडेंशियल डाले, जब मैंने देखा तो वो लॉगिन नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके बाद मैं वहां से निकल आया, मैंने दोबारा उसको किया, तो मैं दूसरी सही जगह चला गया। उसके बाद मैं ABC बैंक की साइट पे चला गया और मैंने जाके अपने क्रेडेंशियल डाले और काम करके वापस आ गया अपना जो भी करना था। वो दूसरी साइट जो थी वो मिडिल में थी, उसने बीच में, ये मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक्चुअली ऐसे नहीं है, बट टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंटली होता है, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं मैं ये साइट सिर्फ इसलिए बनी थी कि डेटा कैप्चर कर सके। या ये इस तरह होता है कि मैंने आपको कॉल किया अली को, लेकिन दरमियान में कोई बैठा हुआ है, या मैं मैसेजिंग कर रहा हूं, लेट्स से SMS भेजा अली को, लेकिन किसी और ने कैप्चर कर लिया, लेकिन कैप्चर करके अली को भेज दिया। अली ने जो मैसेज भेजा वो भी उसने कैप्चर किया और फिर मुझे फॉरवर्ड कर दिया, और वो बीच में बैठ के सिर्फ मैसेजेस पढ़े जा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ अटैक्स आर कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक, जो कि आपको पता भी नहीं चलते, लेकिन वो इंफॉर्मेशन लीक हो रही होती है और उसको बाद में एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इसी तरीके से अब आजकल जो कोविड की वजह से अब हम रिमोटली काम कर रहे हैं, रिमोटली काम करने में बहुत सारे तरीके हैं। रिमोट डेस्कटॉप यूज होता है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी यूज होती हैं जो कि कंप्रोमाइज हो जाती हैं, और वो फिर जब आप एक्सेस करते हैं रिमोटली, उसी तरीके से कोई भी बाहर से बैठ के भी एक्सेस कर लेता है। अगर वो बाहर से बैठ के एक्सेस कर सकता है, तो इसका मतलब है उसको भी उतनी ही एक्सेस हो जाती है आपकी इंफॉर्मेशन की जितनी आपको एक्सेस है। So you need to make sure that you are using the right technology and you are using the right implementation of that technology, क्योंकि खाली टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके पासवर्ड्स कैसे सिलेक्ट किए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज कहलाती है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुई है या नहीं हुई है, वो एक अलग मैटर है, एंड सो ऑन। So these are the threats we are talking about. We can go on and on for these. अब आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्रेट होती जा रही है वो ये कि अगर आप बहुत अच्छे भी हैं सिक्योरिटी में और अपने सिस्टम को सिक्योर भी रखते हैं, तो बाद वक्त आपको पता भी नहीं होता कि कौन सी नई वल्नरेबिलिटी आ गई है, एंड दैट वल्नरेबिलिटी जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इससे पहले कि कोई उसका वेंडर उसका पैच रिलीज करे। दोज आर कॉल्ड जीरो डे अटैक्स। सो आजकल जो बात कही जा रही है कि पहली चीज जो है साइबर रिस्क समझने के लिए, वो है कि मैनेजमेंट मस्ट गेट इन्वॉल्व टू एंश्योर दैट एप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज आर इन प्लेस। सो फर्स्ट स्टेप उसका ये होगा कि एक्नॉलेज किया जाए। मुझे ये मालूम है कि अब से 5 साल पहले आई वाज टॉकिंग टू अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, when I explained to them that you need to have certain controls in place, so their response was, why do we need that? And I explained the whole thing कि ये हैक हो जाता है ये वो। तो रिस्पॉन्स ये था उनके CFO साहब का, वी आर नॉट हैक्ड येट, तो हमें कोई जरूरत नहीं। और उसका उस वक्त भी मेरा जवाब यही था कि यू ऑनेस्टली डोंट इवन नो इफ यू आर हैक्ड और नॉट। जो सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाते हैं ऑन द एवरेज इट टेक्स अबाउट 18 months कि पता चले कि वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर के लोग बताते हैं उनको कि आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया, इसलिए कि वो कुछ ना कुछ
ऐसी चीज जाती है वहां से जो लोगों के लिए नई होती है या डिफरेंट होती है. दे कैन सी फर्स्ट बिफोर द यूजर सी. सो दैट इज अनदर चैलेंज, दैट जब तक आप उसको एनालिसिस नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है. इसी तरह है जैसे कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जब तक उनका ब्लड टेस्ट ना किया जाए आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कुछ है कि नहीं है. उनके सिम्टम्स नहीं नजर आते. जब सिम्टम्स आते हैं नजर तो बहुत देर हो चुकी होती है. इसलिए कहा जाता है ना, रेगुलर चेकअप किया जाए हर साल टेस्ट हो जाना चाहिए. वो सिर्फ इसीलिए है कि आपको पहले से मॉनिटर कर रहे हो, आपको पता हो. इसी तरह आपकी सिस्टम्स की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए. So one more thing is called W's of security and compliance. One more thing I would like to explain here. एक और चीज है जिसका लफ्ज हम यूज करते रहते हैं बार बार. एक तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं और दूसरा है कंप्लायंस. मुझे अंदाजा नहीं है कि आप लोग की अभी तक, मैं बल्कि आई एम श्योर कि अभी तक कोई ऐसी कंप्लायंस है नहीं. अभी जो सवाल आया कि ACCA मेंबर्स को क्या करना चाहिए, तो इन प्रिंसिपल इससे सेमिनार शुरू होने से पहले मैं यही बात कर रहा था कि हमें कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो कि हर एक को मालूम हो और वो बहुत मुश्किल ना हो इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन कम से कम बेसिक कंट्रोल्स हो, उनको मालूम हो कि ये मुझे अप्लाई करने हैं. बट हैविंग सेड दैट, अब मुझे याद आ रहा है कि अब आजकल ऑडिट्स जब किया जाता है तो उसमें कंप्यूटर के ऑडिट भी होता है. इसलिए कि जो ऑडिट के लिए डेटा जनरेट किया गया, फाइनेंशियल डेटा, वो तो किसी कंप्यूटर से आ रहा है. अगर उस कंप्यूटर सिस्टम की इंटेग्रिटी ठीक नहीं है, हाउ कैन आई ट्रस्ट? अगर हमने एक अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाई किया है, तो जीरो किया है, मायऑप किया है, या जो भी किया हो, तो वो अगर हमने कंप्यूटर, वो अगर अकाउंटिंग सिस्टम ही ठीक नहीं है तो मैं उसकी रिपोर्ट्स पे कैसे रिलाय करूंगा? तो इसका मतलब ये कि आप तो ये काम करते हैं ऑलरेडी कि उसका आईटी ऑडिट तो कर रहे होते हैं आप. आईटी उससे बिफोर यू रिलाई ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम, तो इसका मतलब ये कि जब आप उसकी रिलाय कर रहे हैं रिपोर्ट पे, तो उसकी इंटेग्रिटी पे रिलाय करने का वाहिद तरीका ये है कि आप उसकी सिक्योरिटी रिव्यू भी करें. एंड विल टॉक अबाउट दैट. प्लस एक और चीज विच इज बिकमिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब से पहले, बिफोर नाउ, आई यूज्ड टू से कि जी देयर आर टू सर्टेनिटीज इन लाइफ जो कि आप लोगों को मालूम है अच्छी तरह. वन वाज डेथ एंड सेकंड वन वाज टैक्सेस. पाकिस्तान में तो हम थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं, पर दुनिया में टैक्स की तरह ही, डेथ की तरह ही है टैक्स, कि देना तो पड़ेगा कुछ भी कर लें. लेकिन अब एक तीसरी चीज बनती जा रही है, एंड दैट थर्ड थिंग इज कंप्लायंस. कंप्लायंस नहीं है तो बिजनेस नहीं है. डन, पीरियड, फिनिश. इसलिए कि अगर आप लेट से पेमेंट इंडस्ट्री में हैं या अगर आप बैंक हैं तो स्टेट बैंक की कंप्लायंस होगी. आप टेलीकॉम में हैं तो टेलीकॉम की पीटीए की कंप्लायंस होगी. अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको डिफरेंट जगह पे अपना कोई ना कोई कंप्लायंस तो होगी. अकाउंटिंग सिस्टम कोई फॉलो कर रहे होंगे आप, कोई प्रिंसिपल्स होंगे, कोई पॉलिसीज होंगी, उसको आप कंप्लाई करेंगे. सो द बिजनेसेस कांट वर्क. एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक आपकी सर्टेन कंप्लायंस ना हो, हलाल की सर्टिफिकेशन ना हो, फॉर एग्जांपल, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो कंप्लायंस इज something which is becoming extremely important if you want to do the business. Doesn't matter whether it's a local business or international business. कोई छोटी मोटा काम कर रहे हो आप कहीं पे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी भी लेवल पे एक्सपोर्ट करने की बात करें या आप और करें तो कंप्लायंस के बगैर गुजारा नहीं है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल कि जब आप सोच रहे होते हैं सिक्योरिटी की तरफ तो आपको इन 5 W's के बारे में सोचना है. Why we need security management and compliance. अब आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाएगी कि इस इंडस्ट्री में रहने की वजह से मुझे सर्टेन रीजंस हैं, मुझे ये कंप्लायंस करनी है. What are the outcomes to be achieved and what are the success metrics? What policies? What is our incident response plan? What are training requirements? And so on and so forth. Business continuity, disaster recovery, and so on. Where are we getting the money? इसका मतलब है, do we have acceptance from the top level? हमारी ये hierarchical
का अप्रोच अभी भी चल रही है कि वो रिलाई ऑन, जब तक सपोर्ट नहीं होगी बोर्ड की, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की, कोई चीज नहीं हो पाएगी. When are we going to have security audit and take action to implement security compliance? And who is responsible for information security? This is critical for small to medium organization. कि भाई ये responsibility किसकी है? क्या ये accountant की responsibility है? क्या ये technical matter है? कौन manage करेगा information security? And so on. So these are the things which you need to understand, you need to consider for your business. तो executive management का जो role है वो है developing a business aligned information security strategy. और उसके once you have got the strategy in place, then you need to think of the framework कि वो strategically क्या करना है, tactically क्या करना है, और आपको कौन से processes, policies apply करनी है आज के लिए. And then उसको कैसे आपको promote करना है, कैसे buy-in आएगी end users के साथ, actual implementers के साथ, actual जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वहां पे. It is not simple, it is not easy that to build a cyber resilience. तो एक पूरा प्रोसेस है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है जो करनी चाहिए और डेवलप करनी चाहिए, और पूरा प्लान है जो बनाना चाहिए, और उसके अंदर सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो भी होने चाहिए आपके पास. So these are the key steps of cyber resilience: manage and protect, identify and detect, respond and recover, and govern and assure. And it is a cyclic process. Once you have completed everything, you will go back to same. आपको दोबारा पता चलेगा कि अब तो चेंज आ गया, क्योंकि थ्रेट लैंडस्केप जो है वो चेंज हो रही है हर रोज. I think I can go on and on forever, but it's almost an hour, so I would rather stop here and take the questions. और उससे पहले बस ये आखिरी एक मैं आपको ये बात बता दूं कि there are international standards जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं. इनमें से एक स्टैंडर्ड कहलाता है ISO 27001, जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है. उसके बाद ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी US, इनका अपना एक फ्रेमवर्क है. डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट की हैं, लेजिस्लेशन बनाए हैं और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स की हैं. उनमें AICPA है जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैं, AICPA के, आप उनका रिस्क फ्रेमवर्क है साइबर सिक्योरिटी. आप लोगों के लिए अगर आसान है या आप लोग डील करते हैं उनसे तो आप देख सकते हैं. आफ्टर दैट इसके अंदर आपको CPAs और CAs के लिए बाकायदा क्राइटेरिया मौजूद है, अटेस्टेशन गाइडलाइंस मौजूद हैं, बल्कि देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड जिनको कंप्लायंस में CA या CPA होना जरूरी होता है. I think you should look into that as well, that how can you contribute and how can BACC a part of that. अपनी recognition वहां पे करानी पड़ेगी आपको. Then GDPR is a European Union का regulation है जो privacy के बारे में है. ये personal data protection की बात कर रहा है. More recently last year CCPA आया जो कैलिफोर्निया का है, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, एंड ऑस्ट्रेलिया में है पर्सनल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन PII एक्ट. ये सारे एक्ट्स या जो लेजिस्लेशन है इनके साथ ये जो है आपकी क्या कहना चाहिए, there are implications for not complying to these standards or requirements. तो इनके लिए आपको फाइन भी हो सकता है. So summary is that accountants should be aware of cyber risks and threats. They should have the knowledge of protecting personal identifiable information, and they really need to understand causes of cyber attacks and how loss. And then they build information security resilience
so that they can work, they can use the risk management frameworks जो कि internationally available हैं. We don't have to reinvent the wheel, but we have to make sure that we are doing the right thing for our customers, our clients, and उनके आपके पास उनका बहुत important data होता है. अगर आप exclusively किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वो organization का data आपके लिए important है, और अगर आपके पास clients हैं उनका data important है. So you need to be vigilant and do the right thing for them as well. So I'll thank you, and I'll take any questions if you have. Gee, guys, if you have any questions, do let me know. There are quite a few questions that came across, and I think they're all related to some of the skills that ACC members need to have. I think Dr. Aftab ने इस चीज को बड़ा comprehensively cover किया है. मैं इसी area में कुछ specific questions भी ले लेता हूँ कि what knowledge should ACC have, या ACC members should have for passing the CISM Security Manager exam? Okay. देखिए, एक सर्टिफिकेशन जो है CISM is Certified Information Security Manager, right? इसी तरह अगर देखें, ये ISACA की सर्टिफिकेशन है. ISACA is a body, Information Security Audit and Control Association. इसी तरह दूसरी एसोसिएशन है जिसकी मैंने बात की थी पहले, वो थी ISC Squared, International Information System Security Certification Consortium. इसको याद रखना भी एक मुश्किल काम हो जाता है बाज़ औक़ात. और ISC Squared जो करती है वो कहलाती है CISSP, Certified Information System Security Professional. तो सिस्टम जो है और CISSP जो है वो एक तरीके से सेम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं अगर आप करना चाहें. उसके अंदर आपको अकाउंटिंग के लिहाज से अगर आप देखें, कोई भी हो जिसने मैनेज करना है ना, तो मैनेजरियल स्किल्स तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको बेसिक एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है. समवन हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर एज वेल. तो आपको बेसिक आईटी का मालूम होना चाहिए. मैनेजर का क्या रोल होता है, या मैनेजर को आप क्या समझते हैं? मैनेजर का जॉब जो होता है वो ये होता है कि किसी तरीके से राइट लोगों के साथ, राइट स्किल सेट के लोगों के साथ मिलके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करा दे. वो मैनेज कर सकता है, और उसके पास ये भी स्किल हो कि वो राइट क्वेश्चंस पूछ सके, क्योंकि उसके लिए जो चैलेंज है वो ये है कि उसको बजट भी मेंटेन कराना है एंड सो ऑन, कंट्रोल करना है. सो सिज्म करने के लिए या CISSP करने के लिए एक तो प्रीरिक्विजिट ये है कि आपके पास आईटी की एनफ नॉलेज हो. अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वक्त लगाना चाहिए समझने के लिए कि आईटी सिस्टम्स क्या हैं, नेटवर्किंग कैसे होती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये थ्रेट क्या है, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, क्या रिस्क हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी. इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप मैनेज कर सकें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिसोर्सेज को और इंप्लीमेंट करवा सकें जो कंट्रोल्स, राइट कंट्रोल्स हैं आपके लिए. एक और जो चैलेंज है जो पूरी दुनिया का है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है कि ये जो प्रोडक्ट्स बेचने की कंपनीज हैं वो आके कहती हैं कि जी हम आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर देंगे. वो इंतहाई बायस्ड अप्रोच होती है, क्योंकि उसने तो यही बेचना है जो उसके पास है. एक नहीं तो 3 प्रोडक्ट्स के साथ वो डील कर रहे हैं. वो आपके पास फिट हो रही है या नहीं हो रही, वो तो बेचेंगे तो वही. तो आपको ये समझने की बड़ी जरूरत है कि आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट समझ लें और इंडिपेंडेंटली किसी से या तो आप समझ लें और उसके बाद एक प्लान बनवा लें और फिर आप इंप्लीमेंट करें कि मुझे क्या क्या चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. एज अ ब्लैंकेट कोई ये नहीं होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आ रही है तो इसका पूरा सुइट उठा के इंप्लीमेंट कर दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं ये समझता हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आईटी की, नेटवर्किंग की, सिस्टम्स की और रिस्क की होनी चाहिए उससे पहले कि कोई सिस्टम करने की कोशिश करे. या सिस्टम करने की प्रिपरेशन में जो उसके मॉड्यूल्स हैं या जो सेक्शंस कहलाते हैं, 4 या 6 सेक्शन जितने भी हैं, उनको आप पढ़ के देखें कि आपको कितना समझ आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो यू वर्क बैकवर्ड्स और उस एरिया के अंदर
या तो आप मजीद ट्रेनिंग्स लें या फिर उसके अंदर मजीद एक्सपीरियंस लें। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। जी थैंक यू। आई थिंक एक और एस्पेक्ट जो आई थिंक क्वेश्चंस में नहीं आ रहा, जिसको अभी हाईलाइट करना चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई वाज डिस्कसिंग विद आफ्ताब साहब बिफोर द सेशन, और वो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर करंट मार्केट। अब पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस जिनको सबसे ज़्यादा थ्रेट है ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वो कौन सी हैं? यू नीड टू आइडेंटिफाई दीज। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं who do not know about such threats, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि when they come across knowing such threats, that's only when the water has surpassed your head, जब उनको कोई नुकसान हो चुका होता है तब उनको पता लगता है कि अच्छा यार ये भी कोई हैक होगी वेबसाइट या कैसे हो गया, समझ नहीं आ रही कैसे हो गया। एंड आई एम टॉकिंग I'm saying this because of some of the experiences that I had with some ACCA member firms and some other companies who were offering IT solutions and HR solutions to customers across the world. अब यहाँ पे आपका रोल क्या आता है? आपका रोल पहले तो ये आता है, not only just getting the skills and the relevant knowledge, but to also understand the current market that you are in. आप कभी किसी सेठ के पास जाके उससे बात करेंगे ना टू इन्वेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज आपके जो डाटा है वो वैल्यूएबल है, वो हम लूज कर सकते हैं बिकॉज देयर सो मेनी वल्नरेबल पॉइंट्स, तो ही विल नॉट लिसन टू यू डायरेक्टली। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस पर और उसको दिखाना पड़ेगा, जिस तरह आप भी बता रहे थे आफ्ताब सर के ROI क्या है। ROI दिखाना इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बहुत जरूरी होता है और एजुकेट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सो आई थिंक आप लोगों के लिए पहला स्टेप ये होना चाहिए कि यू अंडरस्टैंड योर करंट मार्केट, और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वहां पे पहला स्टेप आएगा जिस तरह हमने अभी किया है, एक अवेयरनेस का स्टेप आएगा, एंड देन यू विल go into implementing and then acting on certain aspects जो आपको लगता है बहुत जरूरी है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, उसके बाद जो आपका स्टेप बनता है एज अकाउंटेंट्स, वो ये है कि टू सी इफ यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी या CISM आप करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी मैनेजर एग्जाम दे के, ठीक है, वो देन यू रियली हैव टू सी what this particular career entails, इन लोगों की जिंदगी कैसी होती है, एंड वुड यू रियली वांट टू गो हियर और नॉट। ठीक है, सिंपली बिकॉज इट साउंड्स इंटरेस्टिंग डजंट मीन इट इज इंटरेस्टिंग। वैसे सुनने में बहुत होता है, इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज इनटू दिस। आपको आफ्ताब साहब ने भी आई थिंक मेनी टाइम्स अपनी प्रेजेंटेशन के दरम्यान में बताया कि आई एम सिंप्लीफाइंग दिस फॉर यू टू अंडरस्टैंड। So things get quite technical, and you need to have that aptitude to get into technical stuff. And IT mein na, when you see that language, when you see all of those back end stuff, you really need to make sure कि आपका aptitude है उस चीज का। So from my side, I think this is an advice, and I think Aftab Sahab can also comment on this, कि पहले learn about your current market, see if there are vulnerabilities. I'm sure all of you must be working somewhere, so see if you have those vulnerabilities in your companies, identify them, try to solve them yourself or highlight them to the owner so that he or she can mitigate those. Then see if you can sort of use this interest or use your inclination towards cybersecurity as a means to get into this career. जी आफ्ताब साहब, इसके ऊपर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छी तरह समराइज किया है। तो पहली चीज जो, जहां तक थ्रेट लैंडस्केप की बात की है आपने, उसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि बहुत अभी रीसेंट एक केस ऐसा हुआ है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कॉम्पिटिटर की ऑर्गेनाइजेशन को हैक करवाया है। इस कॉल्ड एस्पिनाज। तो ये जो है, ये काम होता है। दूसरी बात कि ये आप हरगिज ना समझिए, पहली स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप वल्नरेबल नहीं हैं, आप हैं। एवरीबॉडी इज। आप कनेक्टेड हैं। अगर आपकी मशीन इंटरनेट पे है, वो हैक हो सकती है, नो क्वेश्चंस के नहीं हो सकता। द ओनली वे समवन इज सिक्योर जो कनेक्टेड नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। अगर आपका फोन जो है इंटरनेट पे नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, अगर आप
20 साल पुराना वाला नोकिया का फोन यूज करना चाहते हैं, यू आर अ परफेक्ट हैप्पी मैन, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब जो आज के स्मार्टफोन्स के साथ, स्मार्ट टैबलेट्स के साथ, लैपटॉप्स के साथ, यू आर इक्वली वल्नरेबल। और रीजंस बताया तो फाइनेंशियल मोटिवेशन के जी अलावा। जी सॉरी, तो मैं आपकी बात की दूसरी तरफ आ रहा हूँ। एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल आसान इसलिए एक नया करियर है। पहली बात ये देखिए कि अगर आप किसी भी चीज में जाना चाहते हैं और स्पेशली सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, पहले आपको उसकी वर्किंग अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो उसका रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। आपको ऑडिटर बनने में कितना टाइम लगता है अकाउंटिंग के लिए? उस वक्त लगता है जब आपने अकाउंटिंग सीख ली होती है। वो तो आपको किसी को कहना ही चाहिए कि मैं आज जाके 15 दिन लगाऊं तो मैं बुक कीपिंग सीख लूंगा, उसके बाद मैं ऑडिट शुरू कर दूं। बट आई कांट डू इट, बिकॉज उसके बाद मुझे ये भी सीखना होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि और कैसे होता है। फिर मुझे, अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाता हूं तो मैं फोरेंसिक अकाउंटिंग क्यों नहीं हर एक कर सकता? सब अकाउंटेंट्स हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग करवा लें आप सबसे, ओनली एक्सपर्ट्स कैन डू इट। इसी तरह जब हम सिक्योरिटी में जाते हैं तो सिक्योरिटी में कोई भी रोल हो, वो रोल एक लेवल ऊपर होता है उस प्रैक्टिशनर से जो वो काम कर रहा है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं नेटवर्क सिक्योरिटी करना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं नेटवर्किंग का एक्सपर्ट हूं। अब मुझे पता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उसको ट्रबल शूट भी कर सकता हूं और रिस्क भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अगर मैं समझता हूं कि मैं एप्लीकेशन को सिक्योर करना चाहता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए एप्लीकेशन की डेवलपमेंट कैसे हुई थी। आई मस्ट बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड देन आई कैन अंडरस्टैंड कि कोड लिखा गया था तो उसके अंदर क्या वल्नरेबिलिटीज थी एंड सो ऑन। इसी तरह सिज्म करना, शायद इम्तिहान पास करना इतना बड़ा मसला ना हो अगर कहीं से डम्प्स मिल जाते हैं, क्योंकि होता ये हमारे यहाँ का ट्रेंड जो है वो ऐसा है। लेकिन अगर सही मानों में कुछ समझ के पढ़ना चाहता है तो उसका तरीका यही है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। और जहां तक उसकी बात है कि अपॉर्चुनिटी बेताशा है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन साइबर सिक्योरिटी। तो अगर आप करना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में एंटर होना चाहते हैं, यू मस्ट ट्राई दैट। और मगर उसके लिए जरूरत यही है कि आप शुरू करें स्क्रैच से, पढ़ना शुरू करें, बेसिक्स अच्छे करें अपने। क्योंकि ये समझ लें कि आप वॉर में जा रहे हैं, रोजाना आपका इम्तिहान होगा कि दूसरी साइड पे जो बैठा है हैकर, वो बहुत प्रिपेयर्ड होता है। अगर आपको किसी ने हायर कर लिया कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी, तो आपको कम से कम उतना बड़ा सोल्जर तो होना चाहिए जितना सामने वाला है। तो ये मेरी एडवाइस होगी कि you are most welcome and you should. I will really encourage everyone to look into cybersecurity, but you need to be very determined and work very hard and learn the basics before doing any certification, CISM करना हो या कोई भी करना हो। क्योंकि खाली piece of paper से अब इस दुनिया में काम खत्म हो गया है। पहले होता था ये कि एक सर्टिफिकेशन का एक कागज हाथ में आ जाता था तो उसकी वजह से हमें बहुत बड़े एडवांटेज मिल जाते थे। Now that's not the case at all. I think I'm very blunt, but I think it's very important that everyone understands that. नहीं, you're quite right, sir. I think जो हमारे ACC members हैं कॉल पे, they do understand कि they also have to submit their CPDs. And I think CPD का concept भी यही है जो आपने explain किया है कि it's not just having this particular certification done. The certification is your foot on the doorstep, and and all of the rest of the things is your experience on finding out new ways of how people are hacking. I don't know if you guys have seen the movie Catch Me If You Can. It is based on true events. It's about Frank Abagnale, जिन्होंने 1980s में डॉक्टर impersonate किया, फिर उसने एक एयरलाइन पायलट को impersonate करके उस टाइम पे $2 million तक की पे और जो है टिकट्स पे प्लेन पे सफर किया थ्रू आउट द वर्ल्ड. And you have, and the film details very effectively and efficiently how he found out some of the क्या नाम है लूप होल्स, और फिर किस तरह से वो पकड़ा गया. अच्छा, पकड़ने के बाद आप ये देखें कि लुक एट दी हिज परसिस्टेंस कि जब FBI ने उसको पकड़ा तो आफ्टर 2 years FBI ने उसको खुद कहा कि देखें हमारे पास और फ्रॉड्स आ रहे हैं, तो हाउ कैन यू हेल्प अस.
and then he was recruited by FBI, and then he was hired by all of these multinational banks to help them secure their checking and all of the other systems. And then he has his book, and he is now still with the FBI. So, and that's an actual case. I think इस तरह की inspiring stories आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएंगी. और it's not like you do something bad and then you move towards some successful career, but ये एक पूरी दुनिया है, जिस तरह आफ्ताब साहब ने बताया कि ये एक this is a whole new island, इसके अपने rules and regulations हैं. You have to understand the lingo, आपको बात करनी आनी चाहिए कि भाई SQL क्या होता है, कहाँ से लैंग्वेज उठाई जा रही है, हैकर्स क्या यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, जिस तरह शुरू में भी बात हुई थी. So it's all around this. I think हमारे पास 6 more minutes हैं. We'll take 2 more questions and I think we'll wrap this up. There is one. जी सर बताइए. सवाल नहीं है तो आपने मूवी याद करा दिया है. तो देयर आर सो मेनी मूवीज व्हिच कैन बी रेफरेंस्ड, और आपको वो अगर किसी को शौक है तो जरूर कांटेक्ट करे और देखे उसको. आई कैन टेक इट ऑफलाइन और बता सकता हूँ. एक छोटा सा क्लिप है जो मैं आमतौर पे लोगों को दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो वो आपको मजीद बताएगा. इफ आई एम एबल टू शेयर, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू और नॉट, लेकिन लेट मी ट्राई, क्योंकि आमतौर पे ऑडियो का प्रॉब्लम हो जाता है. ये वेबएक्स का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लेट मी ट्राई. जी सर. कैन यू हियर द साउंड? जी जी आवाज आ रही है, बट वी कांट सी एनीथिंग. ठीक है, तो म्यूजिक तो सुनाई दिया ना आपको, इसका मतलब है कि आई कैन शेयर द स्क्रीन. जी सर. ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? I think it's loading. Yes. नहीं सर, आई थिंक दोबारा शेयर करिएगा. Okay. Yes, can you see now? कुछ नजर आ रहा है? जी सर, आ गया. ठीक है. Ik zie een school tegen ons. Ja. Insecten. Dat lief? Twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie. Een moto. Oranje. Wat erop? Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie. Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4. De vierde, daar zei ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Les spierscheur. Maison rouge, balcon. Non. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat eigenaar gaat veranderen. €750.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Serieus? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat vind ik heel eng.
G. Make sense? जी, I think it's I don't know. जी जी बिल्कुल सर। I think मैं इसका एक quickly एक ओवरव्यू शेयर कर देता हूँ। आई थिंक वो कुछ कमेंट्स आ रहे थे, वो लैग कर रही थी स्क्रीन की। बेसिकली इट वाज अ माइंड रीडिंग वीडियो जहाँ पे पीपल यूज एक बंदे के पास जा रहे हैं और वो उनको उन्हीं की चीजें बता रहा है। पैसे कितने उनके अकाउंट में नेगेटिव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स के नाम वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर एंड पे वो रिवील ये करते हैं कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन इस बंदे को पता थी, ये आपने खुद ऑनलाइन डाली हुई है। there are so many portals जहाँ पे already हमारी information चली जाती है। and I think I have seen so many people कि हमें वो next और yes वाला बटन दबाने का इतना हमें वो आदि हम हो गए हैं कि हम ये पढ़ते ही नहीं है कि वो हम yes किस चीज पे कर रहे हैं, वो कहाँ पे हमारी information शेयर हो रही है और क्या वो visible रहेगी कि भी नहीं रहेगी। so आखिरी लाइन जो वीडियो की थी, your life is online and you have to make sure you have to secure your life ताकि लोगों को पता ना हो। आई थिंक ये उस चीज से भी लिंक्ड है कि रिक्रूटर्स भी अब आपकी लाइफ के बारे में, आपके बारे में, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस से अंदाजा लगा लेते हैं। सो इफ यू हैव जीरो प्रेजेंस ऑनलाइन, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग फॉर देम। इफ यू आर रेसिस्ट ऑनलाइन, यहाँ पे तो खैर इस तरह इतना अपेरेंट नहीं है, बट बाहर आपने कोई रेसिस्ट कमेंट्स किए हुए हैं तो वो अब एल्गोरिदम्स हैं, देयर आर सॉफ्टवेयर्स इन प्लेस, वो एकदम से उठाते हैं, देन दे डोंट हायर, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन for every good organization throughout the world. So I think sir, wonderful session with you. I think I thoroughly enjoyed, especially जो आपने इंडिविजुअल एस्पेक्ट से शुरू करके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जब आप लेके गए हैं विद एग्जांपल्स, आई थिंक that is a very good eye opener, very good refresher. एंड आई थिंक ये मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए खास तौर पे इस तरह के टॉपिक्स पे ये बात करता हूँ कि ये ऐसे ही है जैसे आपके वालिद साहब को आके किसी ने कहा है कि फलानी जगह पे आप प्लॉट ले लें, 5-10 साल में उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। सो ये ऐसी ही एरिया है जहाँ पे आप अभी अपने ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू विल बी एबल टू रीप ह्यूज gains in the future. So thank you, sir, for joining in, and for all of those who weren't able to join on time today can join us tomorrow. We will have another session again on at 5 p.m. tomorrow with Aftab sir. And if some questions are unanswered, we will try to answer them tomorrow. And if you have any questions, I hope you got to capture some of the information, contact information of Aftab Saab's company. If not, you can ask me directly. I'll just type in my email address for all to see, and then we can conclude the session. Sir, any last words from your side? Again, thanks for inviting us, and I hope it is beneficial for the community. And we are always available. आपके पास information मौजूद है. Risk Associates, you can look at on the website www.risk-associates.com, or you can contact us. You can look for us at the LinkedIn, or I am not on Facebook, by the way, purposely. Lekin I am on LinkedIn. If someone is interested, I'm always available. The organization is also available on all media, all social media. So we look forward to catching up again sometime. Thank you. Thank you, everybody. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Bye.